from 3rd to 8th week is the embryonic period, also called as the organogenesis period. So in the second week, we discuss about how the extra embryonic mesoderm is formed. In this lecture, we will discuss how the intra-embryonic mesoderm is formed. Okay. Just 1 minute. So intra-embryonic mesoderm is formed from the epiblast cell, from the perimeter streak or the groove. आप ये पिक्चर देखें, इंट्रा-एम्ब्रियोनिक mesoderm. This is the notochord, and this is the 3 germinal layer. In the second week, there is a 2 germinal layer, one is the hypoblast and the other is the epiblast. Now in this, in third week, so all 3 germinal layers become established. So first, intra-embryonic mesoderm, which will lead to the mesoderm. This is the ectoderm and this is the endoderm, and in this way 3 germinal layer is formed. How they form? All 3 germinal layer formed by the epiblast. एपिब्लास्ट जो सेल होंगे वो perimeter streak से इन्वेजिनेट करेंगे अंदर. यहाँ से अगली पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा. एपिब्लास्ट सेल फ्रॉम द perimeter streak. न्यूली फॉर्म सेल जो एपिब्लास्ट सेल से डिटेच हो रहे हैं और perimeter streak से वो इनवर्ड पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो वो कहाँ जा रहे हैं? वेंट्रली जा रहे हैं, लेटरली जा रहे हैं और क्रेनियली जा रहे हैं. Between the epiblast and hypoblast. Initially, this was the epiblast and this was the hypoblast. In the epiblast and hypoblast, between these are the cell which is come here. At the margin of the embryonic disc, intra-embryonic mesoderm merge with the extra-embryonic mesoderm. हमने पढ़ा था तो इसके बाहर जो थी extra-embryonic mesoderm थी. Extra-embryonic mesoderm पहले बनी थी, फिर वो 2 में सोमेटिक और विस्रल में डिवाइड हो रही थी और यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम बन रहा था. तो ये इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म थे और ये उसका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के साथ अटैच हो जाएंगे. बाय द एंड ऑफ द थर्ड वीक, the mesoderm lie between the embryonic ectoderm and endoderm everywhere except in the region of buccopharyngeal and colloquial membrane. तो ये आप देखें था, तो बीच में आपका मेसोडर्म आ रहा है और एक्सेप्ट कहाँ पे है? कोलोइकल मेम्ब्रेन और बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन. बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन is the site where the future oral cavity is found. बक्कल कैविटी भी इसको ओरल कैविटी को कहते हैं. बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन जो सेपरेट करती है जो फेरेंक्स है और उसको और माउथ के, फिर ये मेम्ब्रेन की कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाती है और कंटिन्यूस हो जाती है. तो जो मेसोडर्म बना वो लाई बिटवीन द एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म एक्सेप्ट कहाँ पे? बक्कोफेरेंजियल एंड कोलोइकल मेम्ब्रेन. Buccopharyngeal is fused pericardial plate ectoderm and the colloquial membrane is the embryonic ectoderm and endoderm are fused at the region. यहाँ पे देखिए ये इसका अब वो जो है एक्टोडर्म और ये एंडोडर्म आपस में फ्यूज है. यहाँ पे भी ये दोनों आपस में फ्यूज है लेकिन इसके बीच में मेसोडर्म नहीं. लेकिन आप यहाँ देखेंगे ये मेसोडर्म पड़ा हुआ है और ये इनिशियली यहाँ तक आ रहा है, फिर ये पूरा हो गया. ये perimeter streak है. ये एपिब्लास्ट सेल यहाँ के इन्वेजिनेट करेंगे और ये क्रेनियली, कार्डली और वेंट्रली मूव करेंगे. सो नोटोकॉर्ड is a very important structure. It is a notochord is a rod of the mesenchymal cell and located in the midline. This is a notochord located in the midline, grow cranially in the midline, extend cranially from the perimeter node. perimeter node से फिर ये perimeter node ये था, perimeter node से ये फिर फर्दर cranially मतलब buccopharyngeal membrane की तरफ ये मूव करा था. from perimeter node to the
Formation of notocard. How notocard is formed? Perimeter node or pit like the perimeter streak. The perimeter pit cell proliferate and migrate cranially in the midline toward the buccopharyngeal membrane and form a rod-like structure which is called नोटोकार्डल process. ये नोटोपरिमेटिव पिट है और परिमेटिव स्ट्रिक, यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर बना है नोटोकार्डल प्रोसेस है. इस नोटोकार्डल प्रोसेस become canalized and forming the hollow tube or notocaudal canal which communicated with the amniotic cavity at the midline. ये नोटोकार्डल कैनाल है जो कम्युनिकेट कर रहे हैं. ये एमनियोटिक कैविटी है, ये यूरोपसाइक कैविटी है. तो एमनियोटिक कैविटी के साथ तो अब कैसे बना? प्रिमिटिव स्ट्रिक के सेल प्रिमिटिव पिल से प्रोलिफरेट हुए, माइग्रेट हुए क्रेनियली मिडलाइन टुवर्ड द बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन. बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, यहाँ पे बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कोलेक्टल मेम्ब्रेन है. कोलेक्टल मेम्ब्रेन जहाँ पे फ्यूचर एनल रीजन की फॉर्मेशन होगी और बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन जहाँ पे फ्यूचर माउथ की फॉर्मेशन होगी. तो ये मूव कर रहे हैं पिरामिडी क्रेनियली जा रहे हैं और बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन की तरफ फॉर्म ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको कोरोडल प्रोसेस नोटोकॉर्डल प्रोसेस कर रहे हैं. इस नोटोकॉर्डल प्रोसेस में फिर कैनालाइजेशन हो रही है. कैनालाइजेशन के बाद ये नोटोकॉर्डल कैनाल बना रहा है. नोटोकॉर्डल कैनाल जो है थ्रू द पिरामिड पिट और स्ट्री के थ्रू एमनियोटिक कैविटी के साथ कम्युनिकेशन है. The floor of the tube and underlying endoderm fuse and then break down forming the notocaudal plane. यहाँ पे आप पीछे वाली पिक्चर में देखेंगे ये इसका फ्लोर है. अब ये फ्लोर इसका ऐसे समझो कि खत्म हो रहा है तो क्या कर रहा है? ये आपका फ्लोर एंडोडर्म है, ये भी है. यहाँ पे ये थोड़ा सा खत्म हुआ है तो ये कह रहा है कि द फ्लोर ऑफ द ट्यूब and underlying endoderm. The floor of tube है और endoderm fuse and then break down forming the notocaudal plate. This is the notocaudal plate. यहाँ से इसका जो फ्लोर और एंडोडर्म की डिसअपियर होगी. ये नोटोकार्डल प्लेट बिकम कंटिन्यूस विद द एंडोडर्मल लेयर. अब ये जो नोटोकार्डल है ये यहाँ से एंडोकार्डल से अटैच हो गई और यहाँ से ये देखें ये जो नोटोकार्डल प्लेट थी यहाँ से ये अटैच हो गई और यहाँ से ये अटैच हो गई. फर्दर देखें क्या हो रहा है. फर्दर टेम्पररी कम्युनिकेशन. पहले सिर्फ ये जो नोटोकार्डल कैनाल था तो वो एमनियोटिक कैविटी के साथ उसका कम्युनिकेशन थी. टेम्पररी कम्युनिकेशन इज एस्टेब्लिश बिटवीन द एमनियोटिक एंड यॉर्क साइड कैविटी इज अ न्यूरो एंटेरिक कैनाल. ये एमनियोटिक कैविटी है, ये यॉर्क साइड कैविटी है, तो ये टेम्पररी है, ये फिर क्लोज हो जाएगा. इस जो कैनाल को कह रहे हैं न्यूरो नर्वस सिस्टम से निकला हुआ है. एंटेरिक हम जीआईटी को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो नर्व सप्लाई करती है जीआईटी को उसको हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम करती है. तो योग साइक में हमारी जो है जीआईटी की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे जो एंडोडर्म से. तो ये कह रहा है इसको एंडोडर्म के हिसाब से जो जीआईटी बनाएगी और ये न्यूरो एक्टोडर्म से फिर आगे नर्वस सिस्टम बनेगा तो न्यूरो एक्टोडर्मल कैनाल. ये टेम्पररी है और इसका कम्युनिकेशन है which get a separate underlying the endoderm. अब ये देखें कि इनिशियली ये कैनाल था, फिर ये एंडोडर्म खत्म हुआ था, फिर ये नोटोकार्डल प्लेट थी, ये आपस में कम्युनिकेशन किया. अब ये जो है नोटोकार्डल प्लेट थी उसमें ये फोल्डिंग हो रही है. फोल्डिंग होके ये एंडोडर्म आपस में मिल रहे हैं. अब ये जो फोल्डिंग हो गई नाउ नोटोकार्डल प्लेट चेंज इनटू द नोटोकार्ड. अब ये नोटोकार्ड है, यहाँ पे एंडोडर्म है, ये मेसोडर्म है, ये एक्टोडर्म है. दिस इज द 3 जर्मिनल लेयर, एम्ब्रियोनिक 3 जर्मिनल लेयर. अब जो इंटरमीडिएट जिसको हम कह रहे हैं मेसोडर्म, दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू द 3. One is the paroxysmal mesoderm. This is the paroxysmal mesoderm. उसके बाद आता है लेटरल इंटरमीडिएट मेसोडर्म और लेटरल प्लेट मेसोडर्म.
तो इससे पैराक्सिमल वर्टिब्रल कॉलम बनेगी और चीज़ें बनती हैं। इंटरमीडिएट से मोर यूरोजेनाइटल सिस्टम बनती है। लेटरल मेसोडर्म से फिर बॉडी कैविटीज बनती है। तो नोटोकार्डल फ्लैट जो थी, अब ये आपस में फोल्डिंग हुई, फोल्डिंग के एंडोडर्म आपस में ज्वाइन कर गए और ये टोटली फोल्डिंग हो गई और इनसर्कलिंग हो गई। अब इसको हम नोटोकार्ड कहते हैं। फंक्शन ऑफ द नोटोकार्ड क्या है? डिफाइन द पैरामोडियल एक्सेस ऑफ द एम्ब्रियो। एक्सेस कहते हैं कि ये जब नोटोकार्ड की फॉर्मेशन हो जाती है तो अब हमें पता है कि इंटीरियर ऑफ एम्ब्रियो कौन सा है, पोस्टीरियर कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है। तो जब नोटोकार्ड की फॉर्मेशन होगी तो नोटोकार्ड बीच में होता है, आगे उसका वेंट्रल और एंटीरियर, उसके पीछे जो होता है डॉर्सल और पोस्टीरियर, उसके लेफ्ट और राइट पे। तो ये एक्सेस ऑफ द एम्ब्रियो विल recognize, provide the rigidity to the embryo। बीच में ये rigid स्ट्रक्चर आ रही है। पहले जो सेल्स ये मेसोडर्म 3 जर्मिनल लेयर है थी, तो वो थी बिल्कुल यानी कि सेमी सॉलिड थी। जैसे नोटोकार्ड की आ गई तो वो अब उसमें rigidity प्रोवाइड करेगा। सर्व एज ए बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम हेड से लेके अप टू द लंबर वर्टिब्री और ये पेल्विक गिर्डल, ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है जिसमें रिब्स आ जाती हैं, वर्टिब्री आ जाती हैं, हेड बोन आती है। तो इसमें इसमें इसका इन्फ्लुएंस है नोटोकार्ड का। जो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़े थे, मॉलिक्यूलर इवेंट्स, उसमें जो कुछ जीन्स हैं एक दूसरे को इन्फ्लुएंस देते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, उस हिसाब से ये नोटोकार्ड अपना इन्फ्लुएंस करता है। इंडिकेट द फ्यूचर साइट ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी एंड वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल बॉडी और वर्टिब्रल बॉडी इन फ्यूचर इस नोटोकार्ड की जगह पे रेगुलेट द डिफरेंशिएट ऑफ द सराउंडिंग इंक्लूडिंग ओवरलाइंग एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। अपना ये सिग्नलिंग भी देता है और एक्टोडर्म और एंडोडर्म में फर्दर उसमें चेंजिंग है। लास्ट में फेट ऑफ द नोटोकार्ड क्या है? डीजनरेट हो जाता है एंड डिसअपियर हो जाता है एज ए बॉडी ऑफ द वर्टिब्रल डेवलप। जैसे वर्टिब्रल बॉडीज बनेगी तो ये जो नोटोकार्ड है वो डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेट हो जाएंगे, उसका थोड़ा सा प्रोसेस न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है वो persistent है। Part that lie between the vertebral body persistent at the nucleus pulposus of the each intervertebral disc। इंटरवर्टिब्रल डिस्क एक तो न्यूक्लियस पल्पोसिस से बनता है, दूसरा एनिलस फाइब्रोसिस। ये दो चीजें। तो न्यूक्लियस पल्पोसिस इज द रिमेनेंट ऑफ द नोटोकार्ड। नोटोकार्ड का फंक्शन रिजिडिटी दे रहा था, एक्सेस दे रहा था, एक्सियल स्केलेटन में अपना इन्फ्लुएंस दे रहा था, और वर्टिब्रल कॉलम की जो है फ्यूचर साइट है जहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम है। रिमेनेंट ऑफ द नोटोकार्ड टिश्यू गिव राइज द ट्यूमर कॉल्ड द कोर्डोमास। कोर्डोमास अगर इसका रिमेनेंट रह जाए, ये तो न्यूक्लियर पल्पोसिस है, तो बाकी डीजेनरेट सब अगर दूसरा टिश्यू इसका परसिस्टेंट रहे तो उससे ये कार्डोमास ट्यूमर है जो प्रोड्यूस है। डिफरेंशिएशन ऑफ द इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म मैंने आपको बताया था इनिशियली 2 स्टेट थी, अब ये 3 स्टेट बन गई है। 3 स्टेट में एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और ये एंडोडर्म है। और इस मेसोडर्म को हम कह रहे हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म हमने आपको बताया था कि जो सीलो में कैविटी बन रही थी तो से वहाँ पे ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। यहाँ पे इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, वो फर्दर डिवाइडेड किस में हो रहा है? 3 में डिवाइड हो रहा है। पैराक्सिमल मेसोडर्म, इंटरमीडिएट मेसोडर्म एंड लेटरल प्लेट मेसोडर्म। पैराक्सिमल मेसोडर्म से ये जो वर्टिब्री की फॉर्मेशन होती है तो उसमें ये काम आते हैं। इंटरमीडिएट में ये जो है, जो इंटरमीडिएट में जेनेटो यूरिनरी सिस्टम, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम की फॉर्मेशन होती है। हेलो, तो वो उसमें ये हेल्प करता है। और लेटरल बॉडी प्लेट में बॉडी वॉल्स जो बनती हैं उसमें। तो इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म फर्दर डिवाइडेड इनटू द 3। एस्टेब्लिश्ड ऑफ द बॉडी एक्सेस, ये इतना टॉपिक नहीं है। बॉडी एक्सेस का मैंने आपको बताया कि बॉडी एक्सेस के नोटोकार्ड की जब बन जाता है तो उसका फिर एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल लेफ्ट, तो ये हमें पता है। एंटीरियर पोस्टीरियर क्रेनियोकार्डियल सेल इन द हाइपोब्लास्ट फॉर्म में AVE at the cranial end express the gene for the head formation। ये आप बुक से देख लेने का।
तो एवीई जो है क्रेनियल एंड पे जीन की फॉर्मेशन होती है, वो हेड की फॉर्मेशन के अंदर नोडल जो नोटोकार्ड है एक्टिवेट इनिशिएट एंड मेंटेन द नोड एंड हिस्ट्री। डार्सल वेंट्रल व्यू, तो ये कुछ फैक्टर हैं, बोन मार्क प्रोजेनेटिव प्रोटीन 4, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 2, ventralize the mesoderm from the intermediate and the lateral plate mesoderm। तो इंटरप्लेट और mesoderm में ये अपने दिन एंटागोनाइज बीपी BMP4 activize the dorsalize the mesoderm cranially middle and caudal region dorsal mesoderm controlled by the brachyury gene। So this is the about the establishment of the body axis. Middle and caudal region, dorsal mesoderm controlled by the brachyury gene, and right and left जो axis है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8। तो आपको इनका फैक्टरों का तो एक दो तीन नाम आपको याद होना चाहिए, फिर ये अपना इन्फ्लुएंस करके और करके फिर ये एक्सेस की फॉर्मेशन होगी। और लेटरलिटी जो है वो साइटस इनवर्सस यानी कि एब्डोमिनल और थोरेसिक विसरा जो नॉर्मली पड़े होते हैं, जैसे अपेंडिक्स राइट साइड पे होता है तो वो लेफ्ट साइड पे हो जाए, और मोस्टली सीकम जो ट्रांस सिग्मोइड कोलन है वो लेफ्ट साइड पे होता है, राइट होता है, इसको हम साइटस इनवर्सस कहते हैं। जैसे डेक्स्ट्रोकार्डिया नॉर्मली लेफ्ट साइड पे हार्ट होती है, अगर वो राइट साइड पे हो जाए तो ये लेटरली डिफेक्ट में आ जाएंगे। तो फेट में जो है नोटोकार्ड है, प्रॉक्सिमल इंटरमीडिएट लेटरल प्लेट एक्स्ट्रा मेसोडर्म। तो ये ऐसे देखें, ये जो है नोटोकार्ड पड़ा हुआ है, और ये आपका पैराक्सिमल मेसोडर्म, इंटरमीडिएट मेसोडर्म, लेटरल प्लेट मेसोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो ये इसका सीक्वेंस है, ये नोटोकार्ड फिर पैराक्सिमल राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी। तो growth of embryonic embryo develop cephalocardally, cephalon मतलब head to the lower side यानी फुट की साइड पे ऐसे इसकी फॉर्मेशन होगी। इनिशियली फ्लैट एंड ऑलमोस्ट राउंड होता है एम्ब्रियो, ग्रेजुअली बिकम इलांगेटेड सेफलिक एंड नैरो, ब्रॉड होता है सेफलिक रीजन और नैरो होता है कार्डल रीजन। इस आप इस पिक्चर में हम देखेंगे कि ये हेड रीजन है, ओरोफेरेंजल मेम्ब्रेन वाला जो है हेड रीजन है, और क्लोइकल मेम्ब्रेन जो है इसका जो है लोअर पोर्शन है। तो हेड रीजन ये ब्रॉड है और जो काडल रीजन है वो नैरो है। इन्वेजिनेशन एंड माइग्रेशन सेल कंटिन्यूस अंटिल द एंड ऑफ द फोर्थ वीक। तो ये जो प्रिमिटिव स्टिक थी अप टू द फोर्थ वीक में ये सेल्स की इन्वेजिनेशन और प्रोलिफरेशन होती रहती है, और प्रिमिटिव स्टिक जो है at the end of the fourth week disappear degenerate हो जाती है। तो clinical insufficient mesoderm in the caudal region most result in the caudal dysgenesis। caudal gene जिसमें सीरोनोमीलिया मीलिया कहते हैं लेग्स के जो लंबर रीजन पे कोई डिसफॉर्मलिटी हो जाए जिसकी वजह से लेग भी अफेक्टेड हो, तो स्पाइनल कार्ड भी पड़ा हुआ है, तो उस हिसाब से ये कर रहा है। सम टाइम रेमिनेंट ऑफ द प्रिमिटिव स्टिक सेक्रोकोक्सियल रीजन पे एक ये टेराटोमा होता है, सेक्रोकोक्सियल टेराटोमा। टेराटोमा जो उसको कहते हैं जिसमें 3 जर्मिनल लेयर के टिश्यू प्रेजेंट हो। 3 जर्मिनल लेयर कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ये तीनों की अगर वो टिश्यू प्रेजेंट हो तो उसको हम कहते हैं सेक्रोकोक्सियल। अगर रेमिनेंट परमानेंट स्टिक का होगा तो ये वहाँ पे सेक्रोकोक्सियल टेराटोमा करवाएंगे। Situs inversus in which the abdominal and thoracic viscera become inverse। Situs inversus means यानी कि जो मैंने आपको डेक्स्ट्रोकार्डिया का लेफ्ट साइड वाला राइट साइड पे हो जाएगा, इसी तरह लेफ्ट साइड पे ट्रांसवर्स कोलन होता है और सिग्मोइड कोलन वो राइट साइड पे हो जाए। तो ये है एम्ब्रियोनिक पीरियड ऑफ द ऑर्गेनोजेनेसिस फ्रॉम द 3rd to 8th वीक। एम्ब्रियोनिक पीरियड की डेफिनेशन याद आती है, मोस्टली जो ऑर्गेनोजेनेसिस होती है अप टू द 3rd 8th वीक तक हो जाती है, फर्दर उसमें मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन होती है।
It is the time when the each of the three germinal layer, ectoderm, mesoderm, and endoderm, give rise a number of the specific tissue and organ. तो embryonic period, एम्ब्रियोनिक पीरियड वो है जिसको ऑर्गेनोजेनेस पीरियड कहते हैं, फ्रॉम 3rd to 8th वीक. 3rd to 8th वीक बड़े क्रिटिकल पीरियड होता है जहाँ पे बड़े चांसेस होते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के भी चांसेस होते हैं, और जहाँ पे जो कंजेनाइटल डिफेक्ट होते हैं उनके भी चांसेस होते हैं, यानी कि डिजीज एक्सपोजर इसमें कंजेनाइटल एनॉमलीज इसमें होती है. एक्टोडर्मल डेरिवेटिव्स में हम पढ़ेंगे. अब ये जो है हम एक एक जो एक्टोडर्म फिर मेसोडर्म फिर एंडोडर्म के डेरिवेटिव्स हम पढ़ेंगे. तो एक्टोडर्म के डेरिवेटिव में एट द बिगिनिंग ऑफ द 3rd वीक एक्टोडर्म germ layer has shape of the disc, appearance of the notochord and pericardial mesoderm induce the overlying ectoderm to thick and form the neural plate. जैसे नोटोकार्ड की फॉर्मेशन हो गई, पेरिकार्डियल में और नोटोकार्ड के दरमियान जो मेसोडर्म है वो अपना इंड्यूस देगा, उसके ऊपर जो एक्टोडर्म पड़ा हुआ है उस पर अपना इन्फ्लुएंस करेगा, उसमें चेंजेस क्या आएगी. तो एक्टोडर्म थोड़ा सा यानी कि थिक हो जाएगा, थिकनिंग एंड फॉर्म द न्यूरल प्लेट. ये न्यूरल प्लेट सेल ऑफ द न्यूरल प्लेट मेक अप द न्यूरोएक्टोडर्म. न्यूरोएक्टोडर्म नर्वस टिश्यू और एक्टोडर्म जो है, तो ये जो सेल ऑफ द न्यूरल प्लेट जो है वो मेकअप करवाएंगे. न्यूरोएक्टोडर्म इंडक्शन रिप्रेजेंट द इनिशियल इवेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ द न्यूरोलेशन. ये न्यूरोएक्टोडर्म जो बना, थिकनिंग बनी, जो न्यूरल प्लेट बनी, उसमें अब न्यूरोलेशन होगी. न्यूरोलेशन में क्या कहता है? इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच द न्यूरल ट्यूब इज फॉर्म. न्यूरोलेशन में न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन लास्ट जो एंड स्टेज है, तो न्यूरोलेशन में न्यूरल ट्यूब बनेगा. अब स्टेज ऑफ द न्यूरोलेशन में क्या है? पे इनिशियली न्यूरल प्लेट, ये जो न्यूरोएक्टोडर्म था उसमें थिकनिंग हुई, न्यूरल प्लेट बनी. अब न्यूरल प्लेट में एक ग्रूव आ रहा है, उसके फिर ग्रूव के बाद उसके फोल्डिंग हो रही है, और ये फोल्डिंग आपस में जाके आपस में ज्वाइन करेंगी तो ये न्यूरल ट्यूब बनेगा. और इन फोल्डिंग के अपर क्रेस्ट पे कुछ सेल बन रहे हैं जिनको हम न्यूरल क्रेस्ट सेल कह रहे हैं, और न्यूरल कैसे बने और न्यूरल प्लेट ड्यूरिंग या बिगिनिंग कहाँ पे होगी? अर्ली इन द 4th वीक. और एंड कहाँ पे होगी? एंड ऑफ द 4th वीक में ही इंड्यूस्ड बाय द नोटोकार्ड. नोटोकार्ड अपने इन्फ्लुएंस करेगा जो न्यूरोलेशन की फॉर्मेशन होगी. तो ये देखें न्यूरोलेशन कैसे हो रही है. न्यूरोलेशन ये एक्टोडर्म था, एक्टोडर्म में ये नोटोकार्ड और सब मेसेनकाइमल टिश्यू अपनी सिग्नलिंग इसको भेज रहे हैं, जो इसमें थोड़ी थिकनिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं. अब उसको हम थिकनिंग को कह रहे हैं न्यूरल प्लेट. न्यूरल प्लेट में फिर एक थोड़ा सा ग्रुप प्रोड्यूस हो रहा है जिसको हम कह रहे हैं न्यूरल ग्रूव, और न्यूरल ग्रूव के साइड में ये न्यूरल फोल्ड जो एलिवेशन है, जो डिप्रेशन है उसको ग्रूव कर रहे हैं, जो हल्का सा एलिवेशन है उसको हम न्यूरल फोल्ड कर रहे हैं. तो ये एमिनोटिक कैविटी है और ये योक्सेक कैविटी है. तो इस हिसाब से ये 3 जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. अब एक्टोडर्म में न्यूरोलेशन एक्टोडर्म में हो रही है, तो न्यूरोलेशन क्या हो रही है? तो अंडर द इंड्यूसिव इफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ द नोटोकार्ड का इंड्यूसिंग इफेक्ट में ओवरलाइंग एक्टोडर्मल सेल थिकनिंग हो रहे हैं टू फॉर्म द न्यूरल प्लेट. न्यूरोलेशन प्रोसेस द न्यूरल प्लेट फॉर्म द न्यूरल ट्यूब. अब न्यूरल प्लेट से न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होगी. न्यूरल प्लेट में फिर एक ग्रूव डिप्रेशन हो रही थी, मैंने आपको बताया. तो ये उसका डिप्रेशन और ये उसका एलिवेशन. तो डिप्रेशन को ग्रूव कर रहे हैं, तो ये उसका जो एलिवेशन है उसको हम फोल्ड कर रहे हैं. तो न्यूरल प्लेट लेंथनिंग एंड इट्स लेटरल एज एलिवेटेड हो रहे हैं, तो एलिवेटेड फोल्ड उसको फोल्ड कर रहे हैं. डिप्रेस द मिड रीजन ऑफ द न्यूरल प्लेट, उसको हम न्यूरल ग्रूव कर रहे हैं. तो न्यूरल ट्यूब जो है वो न्यूरल फोल्ड अप्रोच ईच अदर इन द मिड लाइन, दे विल फॉर्म द न्यूरल ट्यूब. तो ये देखें, ये न्यूरल जो फोल्ड थे वो आपस में कंबाइन हो गए एट द सर्वाइकल रीजन. नाउ वी कॉल्ड एज ए न्यूरल ट्यूब. The anterior neuroprocess, cephalic end of the neural tube and posterior neural. ये जो ओपनिंग है ये
ये एंटीरियर है और जो है और ये पोस्टीरियर है। तो इसकी जो पोस्टीरियर न्यूरल कार्डल एंड पे ऑफ द न्यूरल ट्यूब है और ये फिर ये फर्दर इसकी लेंथनिंग हो रही है। तो ये एंटीरियर न्यूरो प्रोसेस और ये पोस्टीरियर न्यूरो प्रोसेस, ये ओपनिंग है, ये भी टेम्पररी होती है, ये आगे चल के क्लोज हो जाएगी। तो द न्यूरल प्लेट फर्स्ट अपीयर द क्रेनियल टू प्रिमिटिव नोड के क्रेनियल की तरफ एंड डार्सल टू द डेवलपिंग नोटोकार्ड के डार्सल रीजन पे और पिरामिडल हिस्ट्री के क्रेनियल एंड पे ये न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन हो रही है। द मेसोडर्म एडजेसेंट टू द इंटर। अब ये जो बन गई है एज द नोटोकार्ड फॉर्म द इलांगेटेड एम्ब्रियोनिक डिस्क इलांगेटेड एंड बिकम ए क्लब शेप इनके डंडे की तरह ये जो स्ट्रक्चर बन गई है। जैसे नोटोकार्ड की फर्दर हो रही है तो जो न्यूरल ट्यूब है उसकी भी फर्दर लेंथनिंग हो रही है। द न्यूरल प्लेट ब्रॉड and extend cranially as far as buccopharyngeal membrane and later on the groove on it. Buccopharyngeal membrane the cervical region पे भी इनिशियली ये न्यूरल फोल्ड आपस में ज्वाइन होते हैं, फिर ये क्रेनियली एक्सटेंड होगी अप टू द buccopharyngeal membrane तक। 80, on the 18th day, the neural plate invaginate to form a neural groove and a neural fold. ये neural fold हुआ, अब ये groove डिप्रेस हो रहा है और ये जो फोल्डिंग है वो एलिवेटेड हो रहे हैं। ये फोल्डिंग आगे चल के आपस में ज्वाइन करेंगी और ये न्यूरल ट्यूब करेंगे। अब इसको हम कह रहे हैं न्यूरो एक्टोडर्म। ये एक्टोडर्म था, अब उससे ये न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसको कंबाइनली हम कह रहे हैं न्यूरो एक्टोडर्म। Sail along the crest of the neural crest, fold differentiated in the neural crest cell. ये जो इसके फोल्डिंग के अपर रीजन पे सेल आप येलो कलर की देख रहे हैं, दीज आर द न्यूरल क्रेस्ट। अब ये न्यूरल एक्टोडर्म था, एक्टोडर्म में थिकनिंग आई थी, न्यूरल प्लेट बनी, न्यूरल प्लेट में फिर फोल्ड डिप्रेशन हुआ, वो न्यूरल ग्रूव जो एलिवेशन हुआ, न्यूरल फोल्ड। अब ये फोल्ड फर्दर एलिवेशन हो रहे हैं और आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, अप्रोच टू ईच अदर कर रहे हैं। तो इनका जो लेटरल रीजन पे ये जो सेल हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल में, जिसको हम न्यूरो एक्टोडर्म कह रहे हैं। न्यूरल क्रेस्ट सेल के ये नॉर्मली तो 3 जर्मिनल लेयर एम्ब्रियो होता है, तो सम टाइम एम्ब्रियोलॉजिस्ट न्यूरल क्रेस्ट को 4th जर्मिनल लेयर भी कहते हैं। न्यूरल क्रेस्ट सेल, न्यूरल प्लेट ऑन द ईच साइड बाउंडेड बाय द न्यूरल क्रेस्ट सेल। तो न्यूरल के फोल्ड, ये जो फोल्ड थे तो वहाँ पे ये जो ईच साइड पे लेटरली न्यूरल प्लेट के ये न्यूरल क्रेस्ट सेल थे। न्यूरल क्रेस्ट डिसोसिएट फ्रॉम द नाइब्रस। अब ये जैसे न्यूरल ट्यूब आपस में ज्वाइन करेगा तो ये न्यूरल क्रेस्ट सेपरेट हो जाएंगे। न्यूरल क्रेस्ट सेल अंडरगो एपिथेलियल टू द मेसेनकाइमल ट्रांजिशन। तो न्यूरल क्रेस्ट की जैसे फॉर्मेशन हुई, आप पिक्चर में देखेंगे ये न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन हो गई और न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होगी और ये जो अपर न्यूरल क्रेस्ट सेल थी वो सेपरेटेड हो गए। आफ्टर द क्लोजर ऑफ द न्यूरल ट्यूब जैसे क्लोज हो जाते हैं, द क्रेस्ट सेल फ्रॉम द ट्रंक रीजन माइग्रेट टुवर्ड 2 पाथवे। ट्रंक रीजन में 2 वे, वन द डार्सल पाथवे एंड वेंट्रल पाथवे। डार्सल जो पीछे जाए और वेंट्रल जो आगे आए। तो डार्सल पाथवे डर्मिस टू द फ्रॉम द मेलानोसाइट ऑफ द स्किन एंड हेयर फॉलिकल। डार्सल साइड पे जो जाएंगे वो पाथवे थ्रू द डर्मिस टू द to form the melanocyte of the skin and hair follicle. Ventral pathway बड़ा important होता है, through the anterior half of each somoid। somoid जो vertebrae की formation होगी उसको हम somoid कहते हैं, to form the sensory ganglion, sympathetic ganglion, enteric nervous system, Schwann cell and cell of the adrenal medulla. These are all formed by the न्यूरल क्रेस्ट सेल। न्यूरल क्रेस्ट सेल जैसे न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होगी तो ये 2 में डिवाइड हो गए। दो के पाथवे से ये रन करेंगे, तो डार्सल पाथवे एंड वेंट्रल वाल पाथवे। डार्सल पाथवे में ये स्किन में जाके मेलानोसाइट की फॉर्मेशन कराएगा और इसमें हेयर फॉलिकल की फॉर्मेशन करेगा। और वेंट्रल पाथवे में एंटीरियर हाफ ऑफ द ईच सोमाइट टू फॉर्म द सेंसरी गैंग्लियन, जो डार्सल रूट गैंग्लियन होता है, और सिंपैथेटिक जो गैंग्लियन होता है, सिंपैथेटिक चेन होती है, उसका एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है, वो उसकी फॉर्मेशन श्वान सेल। ये डेरिवेटिव पूछे जाते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए।
So before the closure of the neural tube, great cell uh, from the cranial region migrate to the craniofacial. अभी न्यूरल ट्यूब की क्लोजर नहीं हुआ है, तो ये जो न्यूरल क्रेस सेल जो थे वो माइग्रेट कर रहे हैं और क्रेनियल रीजन माइग्रेट टू फॉर्म द क्रेनियोफेशियल, यानी कि क्रेनियल कैविटी और फेशियल के जो बोन है वो बनेंगे एज ए न्यूरॉन ऑफ द क्रेनियल गैंग्लियन। क्रेनियल नर्व की जो गैंग्लियन होते हैं वो इनसे बनेंगे ग्लाइयल सेल एंड मेलानोसाइट। न्यूरल क्लेस सेल कंटिन्यूस टू द मेनी ऑर्गन एंड टिश्यू that sometimes they are referred as a fourth germinal layer. तो न्यूरल क्रेस की इतनी कंट्रीब्यूशन है कि समटाइम we called it a fourth germinal layer. Normally three germinal layer, ectoderm, mesoderm and endoderm. So इतने डेरिवेटिव हैं न्यूरल क्रेस के, सो हम कभी कभी इसको फोर्थ जर्मिनल कहते हैं. By the end of the third week, the neural fold move to the midline and fuse to form a neural tube. ये देखिए आप इसको हम डिस्कस कर रहे हैं. न्यूरल फ्यूजन बिगिन एट द फ्यूचर सर्वाइकल रीजन पे फ्यूजन होगी एंड देन एक्सटेंड बोथ क्रेनियल एंड कार्डल. ये न्यूरल ट्यूब की आपस में ज्वाइन करेंगे, बिगिन टू फ्यूचर सर्वाइकल रीजन पे फ्यूजन करेंगे, फिर ये क्रेनियली कार्डली ये फ्यूजन आस्ते आस्ते बढ़ती जाएगी. एंटीरियर न्यूरो प्रोसेस होता है, पोस्टीरियर न्यूरो प्रोसेस को ये आगे चल के वो क्लोज हो जाएंगे. द न्यूरल ट्यूब सेपरेटेड फ्रॉम द सरफेस एक्टोडर्म. ये सरफेस एक्टोडर्म था, उससे ये सेपरेट हो गया. एक्टोडर्म लाइन द मिड लाइन डार्सल टू द नोटोकार्ड. ये दो नोटोकार्ड है, नोटोकार्ड के डार्सल रीजन ये इसका वेंट्रल रीजन है. तो ये न्यूरल ट्यूब की हो गई. तो न्यूरल ट्यूब इज ओपन एट द बोथ एंड कम्युनिकेटेड फ्रीली विद द एम्नियोटिक कैविटी. न्यूरल ट्यूब में ओपनिंग होती है और एम्नियोटिक कैविटी के साथ कम्युनिकेशन. द क्रेनियल ओपनिंग जो है द रोस्टल न्यूरो प्रोसेस जिसको कहते हैं क्लोज एट द 25th डे. ये एमसीक्यू में आता है कि ये क्लोज जो है एंटीरियर है वो 25th पे और जो कार्डल न्यूरो प्रोसेस है वो 27 पे. 2 डे में इसमें वेरिएशन कभी कभी देते हैं, कभी वो कहते हैं 23 पे और 25 पे. तो आप जो मीन है वो 25 to 27 है. जो एंटीरियर है वो 25 डे पे क्लोज होगा और वो पोस्टीरियर है. तो क्रेनियल 1/3 of the neural tube की फॉर्मेशन. क्रेनियल वन थर्ड ऑफ द न्यूरल ट्यूब जो है रिप्रेजेंट करेगा फ्यूचर ब्रेन को. अब न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन हो गई, तो न्यूरल ट्यूब के फर्दर क्या होगा. एक तो न्यूरल ट्यूब क्रेनियल न्यूरल ट्यूब रिप्रेजेंट द फ्यूचर ब्रेन एंड कार्डल 2/3 जो है न्यूरल ट्यूब का वो फ्यूचर स्पाइनल कार्ड फ्रॉम सर्वाइकल रीजन अप टू द ऑक्सीजन रीजन तक ये स्पाइनल कार्ड की फॉर्मेशन है. अपर 1/3 जो है ब्रेन की फॉर्मेशन करेगा. कंजेनाइटल एनॉमलीज जो है नर्वस सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूरिलेशन जो डिस्टर्बेंस ऑफ द न्यूरिलेशन may result in the severe abnormalities of the brain and spinal cord. Most defects are result from the non-closure of the defective closure of the neural tube. न्यूरल ट्यूब की डिफेक्टिव क्लोजर होगी तो उसमें मोस्ट कंजेनाइटल एनॉमलीज की फॉर्मेशन. इन ब्रेन में एननसेफली की यानी कि ब्रेन की फॉर्मेशन कम हुई, छोटा ब्रेन हो गया है. और स्पाइनल कार्ड के रीजन में स्पाइना बाइफिडा. स्पाइनल कार्ड में ये जो स्पाइन आपस में जुड़ती है वो क्लोज प्रॉपर नहीं हुई है और कभी कभी हर्निएशन ऑफ द स्पाइनल कार्ड हो जाती है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है. तो उसका हम डायग्नोज कैसे करेंगे. तो हाई लेवल ऑफ द अल्फा फीटोप्रोटीन in the amniotic fluid is strong sign of the neural tube defect. स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. पहले ये बड़ा होता था, कंजेनाइटल एनॉमलीज करवाता, लेकिन हम प्रोफाइलेटिकली अब आयरन की टेबलेट देते हैं फेरेटिन फीमेल को, तो उसको प्रोफाइलेटिकली उससे बच जाती है. नॉर्मल में भी आप देखें कि ये उसकी स्ट्रक्चर है और ये जो एनलसेफली यानी कि ब्रेन की फॉर्मेशन तब हुई है. स्पाइना बाइफिडा ये है जहाँ पे इसकी कंजेनाइटल एनॉमलीज है जिसमें ये वर्टिब्रेज आपस में ज्वाइन प्रॉपर नहीं हुई है और ये हर्निएशन हो रही है स्पाइनल कार्ड की और उसकी न्यूरल ट्यूब फेलियर
Neural tube defect may failure to closure of the neural tube, anencephaly failure to closure of neural tube in cranial region. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में फेलियर जो न्यूरल ट्यूब क्लोजर होती है तो एनलसेफली इसलिए होती है क्लोजर ऑफ फेलियर टू क्लोजर ऑफ द न्यूरल ट्यूब इन द क्रेनियल रीजन में ये न्यूरल ट्यूब के क्लोज ना हो तो एनलसेफली की बने। फेलियर टू क्लोजर ऑफ द न्यूरल ट्यूब फ्रॉम द सर्वाइकल टू द कार्डल रीजन में होगा तो स्पाइना बाइफिडा होगा। स्पाइना बाइफिडा की फिर ये फर्दर टाइप है स्पाइना बाइफिडा अकल्टा। अकल्टा यानी कि छुपा हुआ होता है, कुछ बाहर से नजर नहीं आता है। जैसे तो ये है, तो ये देखो पूरा के स्किन में प्रॉब्लम थोड़ी सी हेयर लाइन है। तो ये है मेनिंजोसील जिसमें ये मेनिंजिल प्रोट्रूड कर रही है एक, लेकिन स्पाइनल कार्ड अपनी जगह पे पड़ा हुआ है। इसमें मेनिंजोमाइलोसिल में ये स्पाइनल कार्ड दोनों प्रिवेंशन ऑफ द न्यूरल डिफेक्ट फोलिक एसिड जो मैंने आपको बताया कि डायग्नोसिस की प्रिवेंशन डेरिवेटिव ऑफ द ectoderm layer further we will discuss on that later. This is all about the neurulation and the notochord formation in this lecture. Next lecture we will discuss the derivative of the ectoderm. Ectoderm in neuroectoderm in neural crest surface ectoderm का फिर further हम उसको discuss करेंगे. Okay, बेटा. Thank you. So, हाँ, ठीक है. गाड़ी बन के बोले हाँ, बंद है.